It's our lecture on number 1, and I'm your maths teacher. I will teach you first year mathematics. My name is Sir Amir Nisar. I have done masters in mathematics from Karachi University. This is my brief introduction, and I have been teaching in Bahria College Kawarsa since 2009. अब brief introduction के बाद अब कुछ course का भी brief introduction हो जाए. Yes, we are going to learn about mathematics. So we must know what is mathematics. Have you ever thought about it? What is mathematics, students? क्योंकि कम बच्चे मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आपसे बात हो सके. Ehtisham Ajmal has joined us. Yes, Asad, can you listen me? Asad Khan, आपको सही आवाज नहीं आ रही आपकी. अब आ रही है? नहीं सर, अब स्लो आ रही है. स्लो आ रही है. अच्छा जी असद खान, अब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैं हमजा अली को भी अनम्यूट करता हूं. हमजा, I have unmuted you. Connect with me, Hamza Ali. Yes, Hamza. Can you listen me clearly? Hamza, आपको मेरी आवाज आ रही है? एहतिशाम अजमल. Yes, sir. Can you listen me? Yes, sir. My voice is clear? Yes, sir. Clear. ठीक है. बताएं, what do you know about mathematics? सर मैथ इम्पोर्टेंट है सर, हर चीज के लिए सर. हम कहीं भी जाएं तो मैथ के बगैर, हम कुछ काम भी करें तो सर मैथ के बगैर वो काम पूरा नहीं होता. आप कोई कारोबार करें उसमें भी मैथ की जरूरत है, और स्टडी में भी मैथ मेन सब्जेक्ट है. Okay, good input. Asad, can you listen me now? Yes sir. Tell us Math is something very about important. mathematics. Yes sir, math is very important for calculation. Okay. Umair, I have unmuted you. Try to connect with me. Umair, I have sent you a message to unmute yourself. Click on that message. I have unmuted you. Umair. जी सर. Yes, Umair. Can you listen me clearly? जी Tell us something about mathematics. What सर, is मैथ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर हमारी लाइफ के लिए. लाइक बिजनेस में भी मैथ यूज होती है, और मैथ हर जगह कैलकुलेशन यूज होती है, तो इसीलिए मैथ इम्पॉर्टेंट है. Very good input. Mohammad Anas, I have sent you a message to unmute. Connect on that message. Anas, connect with me. Mohammad Anas. Anas is not responding. Zuhair Shahid, I have unmuted you. Connect with me. Yes, sir. Yes, Zuhair. Tell us something about Yes. Sir, mathematics is necessary for our every aspect of life. You can say that. Give few example. Sir, like I personally want to go in the field of aviation. So basically for that field, the physics, chemistry, and maths are the most three important subjects. Okay. Thank you so much for your input. A student, if we talk about mathematics, for mathematics, there is not a single definition exists. Different scientists give different definition on the basis of usage of mathematics. Some say game of number. Why they say so? Because in maths we have to deal with so many times with numbers. On the basis of this, we can say that mathematics is a game of number. You can Google it and you will find so many definitions
available on internet, but one of the professors says that study of function is called mathematics, because in more than 90% case in mathematics we have to deal with some sort of function. So on the basis of this we can say that study of function is called mathematics. So today is our first class. So in this class I have introduced myself, and I will introduce you all with first year mathematics course, paper pattern, and your objective for first year mathematics. तो गोल होना चाहिए आपका, कोई टारगेट होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से हम आपको गोल बताएंगे, टारगेट बताएंगे, किस तरह अचीव करना है पूरे साल में, ये बताएंगे आपको। चलते हैं स्लाइड्स पे। जुहेर आपका माइक ओपन है, आपने माइक बंद नहीं करना है, ठीक है? वो मैं बात करता हूँ, सम टाइम पूछता हूँ। जुहेर, टर्न ऑन योर माइक, आई हैव सेंड यू अ मैसेज। आपने माइक क्लोज नहीं करना है, ठीक है? ठीक है जुहेर? Okay. It is our first slide and it is regarding the definition of mathematics. You all can see that the heading is what is mathematics. A study of function is called mathematics. This definition has given by Professor Dr. Javed Kamar. First year mathematics. As we all know that there are so many branches of mathematics, but in first year mathematics, we mainly deal with two branches of mathematics, which are algebra and trigonometry. These words are not new for you people because you have already know about algebra and trigonometry. Yes, Zuhair, can you Yes, sir. share something about algebra? What do you know about algebra? सर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दे सकता, इट्स जस्ट सिंपल मैथ्स। तो भी इस वक्त माइंड में आपके मैथमेटिक्स के हवाले से बात आ रही है, अलजेब्रा के हवाले से शेयर कीजिए मुझसे। ये डिस्कशन पूरी क्लास के लिए है, इसको सुने सीखें। अ गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर। यस जुएर। सर आई कैंट स्पेसिफाई एनीथिंग राइट नाउ। आपने वेरिएबल का वर्ड सुना है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड वेरिएबल? यस क्या होते हैं ये वेरिएबल? सर एक्स वाई आई गेस। वेरी गुड। वेरिएबल्स आर दोस क्वांटिटीज व्हिच वैरी, जो चेंज होती है। टेम्परेचर इज अ वेरिएबल, या विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता है। एनीथिंग दैट चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल। मैथ्स में वेरिएबल के लिए अल्फाबेट्स यूज होते हैं नॉर्मली, एक्स वाई जी, जो आप कह रहे थे बिल्कुल आपने सही बताया। अब मैं आपको यहाँ डेफिनेशन बता रहा हूँ अलजेब्रा की। अलजेब्रा इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक। Algebra is the modified or advanced form of arithmetic where letters are used in place of number and those letters are called variable. Algebra की definition word variable के बगैर पूरी नहीं होती है। तो ये सारी बातें आपकी रिकॉल हो रही होंगी, आपके मेमोरी में होंगी, जो चीजें आपने पढ़ी हैं। The next branch is trigonometry. Well, student Zuhair, what do you know about trigonometry? सर साइन कॉस आई गेस। These are the trigonometric ratios. Anything else about it? नो सर। Okay. I would like to take some more input from other students. Ehtisham Ajmal, I have unmuted you. Yes, Ehtisham. Turn on your mic. I have sent you a message. Ehtisham, Yes, sir. Ehtisham, tell us something about trigonometry. आपने ये चीजें पढ़ी हैं, जो भी बात जहन में आ रही है आप मुझसे शेयर करें, पूरी क्लास आपको सुन रही है। यस एहतशाम। Yes, sir. बेटा ट्रिग्नोमेट्री सर, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइएगा। सर ट्रिग्नोमेट्री सर मैथ की ब्रांच है
गुड, सर ये इसमें ना हम लोग ना रिलेशन पढ़ते हैं सर साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल्स का। वेरी गुड। यहाँ हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं बिटवीन लेंथ एंड एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल। क्लियर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ट्रायंगल, यस सर। चलें जी, और ये ब्रीफ डिस्कशन हो गई है। चैप्टर नेम, कुछ रूल्स डिफाइन कर दूं मैं। कुछ बच्चे हैं 6, अभी बच्चों ने तो आना है, 25-30 स्टूडेंट्स होते हैं हमारी क्लास में, तो Yes, ये sir. बातें बार बार रिपीट होंगी। आपने एक तो रेगुलर एंड पंक्चुअल होना है और लिसनिंग पावर इन्हांस करनी है। कुछ भी चीज सीखनी है तो लिसनिंग आपकी इन्हांस होनी चाहिए, कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। यस सर। थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस। जिंदगी में कुछ भी सीखना है प्रैक्टिस से होती है, और मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो कुछ भी पढ़ाऊंगा सेम डे प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ, कोर्स बुक आप परचेज करेंगे। तो आपने से कितने लोगों ने कोर्स बुक परचेज की हुई है? हैंड रेस करो। Nobody is raising the hand. It's mean no one has purchased just their textbook. So try to purchase your textbook as soon as possible. तो लर्निंग के लिए गुड, असद खान has test course book, maths book of first year. It's a good sign for learning. And purchase a maths register. There you will note down my lecture. But when I will give you lecture, you may take screenshot. No need to write any line. Just take screenshot. उसके बाद practice करो. Then note down those lectures on your register. तो रजिस्टर परचेज करना है, टेक्स्ट बुक परचेज करनी है, प्रैक्टिस की हैबिट बनानी है। ठीक है, चलें जी। तो मुझे पता है बच्चों के पास बुक्स नहीं होती, तो ये हैं 13 चैप्टर्स जो आपके बुक में इंक्लूडेड है। अब इनके नाम सुने, कुछ नाम से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, कुछ नए नाम होंगे। ठीक है, द टाइटल ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज सेट्स। यू ऑल आर फेमिलियर विद सेट्स फ्रॉम मैट्रिक क्लास, and before metric we study about set in mathematics. Second chapter is real and complex number. Third chapter is equations. We will start our lecture from chapter number 3. Chapter number 4, matrices and determinant. Chapter number 5, groups. This word might be new for you. Chapter number 6, sequence and series. Chapter 7, permutation, combination and introduction to probability. Chapter 8, mathematical induction and binomial theorem. The title of chapter number 9 is Fundamental of Trigonometry. Chapter 10, Trigonometric Identities. Chapter 11, Graphs of Trigonometric Function. Chapter 12, Solution of Triangle. Chapter 13, Inverse Trigonometric Function and Trigonometric Equations. ये इंट्रोडक्शन था आपकी बुक का। जो चैप्टर्स हैं ये उनके टाइटल्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपका गोल है फर्स्ट ईयर का। जिंदगी की किसी भी फील्ड में जब आपका गोल होगा तभी आप अचीव कर सकेंगे। वो लोग ही फेल होते हैं जिनका कोई गोल नहीं होता। तो आपने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया है, मैथमेटिक्स की क्लास है, तो आपको पेपर पैटर्न मालूम होना चाहिए। यहाँ सारी बातें बताई जाएंगी जिस तरह से 100 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा। स्टूडेंट, देयर विल बी 3 सेक्शंस इन योर फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर. Section A will be for MCQs section. There you will be provided 20 MCQs for 20 marks for 20 minutes. आपको पेपर में आप बैठेंगे, चाहे वो हमारे कॉलेज का पेपर हो या बोर्ड का, आपको सबसे पहले MCQs पेपर देंगे और 20 मिनट में वो वापस भी ले लेंगे। 20 मार्क्स होंगे। हर MCQs के लिए 1 नंबर होगा आपके पास, 1 मार्क होगा हर MCQs के लिए। तो ये बात हो गई सेक्शन ए के हवाले से। ये MCQs कहाँ से आएंगे? जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे, जो फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो टेक्निकल पॉइंट्स पढ़ेंगे, वही सारी बातें आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज रिगार्डिंग सेक्शन बी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। इन दिस सेक्शन यू विल बी प्रोवाइडेड 15 क्वेश्चन। आउट ऑफ दोस 15 यू हैव टू अटेम्प्ट 10 और हर क्वेश्चन के मार्क्स 5 होंगे। अभी किस तरह से होंगे मैं मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको।
बेटा ये हाँ, attempt any 10 parts from section B. You have to attempt 10 questions from section B, selecting at least 3 parts from each subsection. First subsection is complex number, algebra and matrices. In this section, you will be provided 5 parts. Out of these 5, minimum you will have to attempt 3 questions. Then second subsection in section B is groups, sequence and series, mathematical induction and counting techniques. Here again you will be provided 5 short questions, and out of those 5 minimum you have to attempt 3. Third subsection is trigonometry. Here again you will be provided 5 short questions. Out of those 5 parts you have to attempt minimum 3. ये तो 3 3 9 हो गए. अब 10th पार्ट कहाँ से आप अटेंड करेंगे, इसके बारे में डिटेल सुन लो. You may choose 10th part from any subsection. अब 10th पार्ट अगर आपको 2 से इजी लगता है आप अटेंड कर सकते हैं, 3 से इजी लगता है आप अटेंड कर सकते हैं, 4 से इजी लगता है आप अटेंड कर सकते हैं. ये जो 10th पार्ट होगा ये चॉइस होगी, कहीं से भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे. टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के लिए हर क्वेश्चन है, तो 5 10 ये हो जाएगा आपके पास 50 मार्क्स. तो ये 50 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे. हमजा अली हैज एंटर्ड द क्लास, 50 मार्क्स. ये बात हुई सेक्शन बी के हवाले से. अब राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस स्लाइड क्लियर. उसके बाद हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. Paper pattern section C, detailed answer question. Here you will be provided 3 detailed questions. Detailed means long questions. Question number 5, 6 and 7. Question number 5 is compulsory. Attempt any 2 questions including question number 5, which is compulsory. And this question number 5 is given from chapter number 6. The title of chapter 6 is sequence and series. So question number 5 तो आपको लाजमी अटेम्प्ट करना है. तो चैप्टर 6 अच्छी तरह पढ़ेंगे आप लोग. फिर 6 और 7 में चॉइस होगी. अगर आपको 6 पे कमांड होगा 6 कर लेंगे आप अटेम्प्ट, 7 पे कमांड होगी 7 अटेम्प्ट कर लेंगे. और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, तो ये 30 मार्क्स का सेक्शन है. 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 30. ये मैंने पेपर पे पैटर्न डिस्कस कर लिया आपसे. अब जो स्लाइड आ रही है वो सबसे अहम बात है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना. स्पेसिफिकेशन टेबल, ये वो टेबल है जो बोर्ड प्रोवाइड करता है टीचर्स को, उन टीचर्स को जो बोर्ड के पेपर सेट करते हैं. 99 बोर्ड पेपर इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जो यहाँ डिफाइन हुआ है. ये मैं खुद से नहीं लिख रहा, ये बोर्ड के ऑफिशियल्स ने प्रोवाइड किया. ये कॉलेजेस को प्रोवाइड की जाती हैं, पेपर जो सेट करते हैं उन्हें प्रोवाइड की जाती है. स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना. अब मैं ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सुनो इसे. सेट पहला चैप्टर है, यहाँ से 2 एमसीक्यूज दिए जाएंगे. कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, यहाँ से कोई लॉन्ग नहीं दिया जाएगा. चैप्टर नंबर 2 2 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, लॉन्ग नहीं दिया जाएगा. मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इक्वेशंस, 2 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा लॉन्ग. मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, 2 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यहाँ से 1 लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा. ग्रुप्स, यहाँ से कोई भी एमसीक्यूज नहीं दिया जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा बस यहाँ से. सीक्वेंस एंड सीरीज, 3 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, एक लॉन्ग. कितने मार्क्स हो गए पता है आपको? लॉन्ग के लिए मार्क्स है 15. जी बेटा आवाज आ रही है आपको? जुहेर जी सर. बस आपको मैंने इसीलिए माइक ऑन रखा है और ताकि आपसे बात हो सके. क्वेश्चन नंबर 2, 2 5s are 10, 3 MCQs 3 marks.
जब आप इनको ऐड करेंगे बन जाते हैं 28 मार्क्स। तो आप देख लें इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का वेटेज कितना है। 28 मार्क्स का वेटेज है पेपर में चैप्टर 6 से। बता इसलिए रहा हूँ कि आपको पोर्शन हाईलाइट हो जाए। यही तो टारगेट है, यही तो एम है आपका। आप सारी चीजें देख लें, किस चीज का वेटेज कितना है। मैंने मार्क्स में कन्वर्ट करके वेटेज बता दिया है आपको चैप्टर 6 का। आगे देखिए, permutation and combination and introduction to probability. One MCQs will be given from this chapter and one short question. No long question will be given from this chapter number 7. Then there comes chapter number 8. The title of it is Mathematical Induction and Binomial Theorem. From this chapter, 2 MCQs will be given in examination. One short question will be given and one long question. Chapter number 9, Fundamental of Trigonometry. 1 MCQs, one short question and one long question will be given from this chapter. Then title of chapter number 10 is Trigonometric Identities. 2 MCQs will be given from this chapter. No short question, no long question as per this specification table. Chapter number 11. The title of chapter number 11 is Graphs of Trigonometric Function. From this, you will only be given one short question to attempt in examination paper. The title of chapter 12 is Solution of Triangle. Here, from this chapter, you will be given 2 MCQs, one short question and one long. And from last chapter, 1 MCQs and 2 short questions will be given. ये बड़ी अहम बात थी आपके लिए। आज पहला लेक्चर है, रोज नहीं बताएंगे आपको। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव कर लें। Right now I am making this slide clear. Well, now we are moving on to the next slide. 2 participants raised hand. Let's see. Asad is raising his hand. Yes, Asad, I have unmuted you. Ji Asad. Asad, I have sent you a message to unmute you. Turn on your mic. Yes, Asad. जी बोलें। सर ये मैंने पहले आपको वो हैंड रेस किया था कि आपने जो पूछा था कि बुक के लिए, बुक किसके पास है। अच्छा अच्छा, जब आपकी क्यूरी रिजॉल्व हो जाया करे तो हैंड डाउन कर लिया करें, ठीक है? ठीक है जी। जुहैर। जी सर, ये मुझे पूछना था कि स्पेसिफिक टेबल का मतलब ये है कि मतलब कौन से टॉपिक में से कितने सवाल आएंगे पेपर में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे। वेरी गुड, यही मकसद है इसका, ठीक है? चले जी, जब आपकी क्यूरी रिजॉल्व हो जाए तो हैंड डाउन कर लिया करें, वरना मुझे मैसेज आता है कि 2 स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड, तो मैं इधर आ जाता हूँ। असद, हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड। Chapter number 3, as we already told you that we will start our lecture from chapter number 3, and the title of chapter number 3 is equations. I hope this word would not be new for you. You might have heard this word in your previous classes, equation. First of all, I would like to take some input from your side regarding equation. Student, what do you know about equations? Yes, Zuhair, your mic is on. Tell us something about equations. सर ये बेसिकली इसमें आपने ये जो 3 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन वगैरह, क्वाड्रिक और कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये सर मुझे अभी ज़रा अच्छे से Zuhair, याद नहीं है, speak लेकिन louder. जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें बेसिकली 3 ये जो मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के, इनके क्वेश्चंस को, ठीक है, इसमें x और y होता है, उनमें से आपने उनको डिप्लीट करके आपने उनमें से एक प्रॉपर एक इक्वेशन बनानी होती है। अच्छा
आपने सुना है मैंने क्वेश्चन क्या किया है? कैन यू रिपीट माई नहीं सर, आपकी क्वेश्चन? आवाज कट रही है। अच्छा, मैंने मैंने आपसे कहा है कि मेरा क्वेश्चन क्या था? आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? कैन यू रिपीट माई क्वेश्चन? नहीं सर, उस वक्त आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा, मैंने पूछा है व्हाट इज इक्वेशन। सिर्फ आप मुझे इक्वेशन डिफाइन कर दें। अब क्लियर है आवाज? यस अच्छा, सर। आपका माइक इसीलिए ऑन है कि मैंने एक स्टूडेंट का माइक ओपन ऑन रखा होता है, क्योंकि ये इंटरनेट है। कभी भी वॉइस जी में जी। इशू हो, आप फौरन मुझे बताएंगे सर इस वक्त आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। जी जी। जुएर, टेल अस अबाउट इक्वेशन। सर इक्वेशन कोई भी ऐसी चीज है जो सर स्पेसिफाई नहीं कर सकता किस तरह करूँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलें कुछ और इनपुट लेते हैं, फिर इससे बात करते हैं। एहतशाम, आई हैव अनम्यूटेड यू। एहतशाम, आई हैव सेंड यू अ मैसेज। टर्न ऑन योर यस माइक। सर। यस। एहतशाम, टेल अस समथिंग अबाउट इक्वेशन। एहतशाम, आपको आवाज आ रही है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। यस सर, सर आ रही आवाज है। कट रही अब आवाज आ रही है एहतशाम? यस सर, आ रही है। ठीक है, बताएं इक्वेशन के बारे में, बताएं सब लोगों को। सर इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है और ये कंसिस्ट करती है सर इक्वल सिंबल बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, कुछ आवाज इनकी कट रही थी, मुझे भी सही से नहीं आ रही थी एहतशाम की आवाज। मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी होगा। सर ये जी बोलें। सर इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट और सर ये कंसिस्ट करती है इक्वल सिंबल बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा है। सुने। सर आप दोनों की आवाज कट रही जी है। जी जुहेर। सर आप दोनों की आवाज कट रही है। अच्छा, मेरी आवाज अब क्लियर है? जी सर, आपकी बीच बीच में थोड़ी लैग हो जाती है। हाँ, वो जिस वक्त सिग्नल ड्रॉप होते हैं तो हो जाती है। मुझे मैसेज लिखा हुआ आता है सिग्नल इज वीक, तो इस वक्त नहीं आ रहा है, तो इस वक्त मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस वक्त क्लियर है? जी जी। अच्छा, एहतशाम की आवाज मुझे ड्रॉप होके आ रही थी, मैंने कहा नहीं, बट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सुने, कोई भी ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वल होगी उसे आप इक्वेशन कहते हैं। ये साइन ऑफ इक्वल किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हो उसे आप इक्वेशन कहेंगे। अब इक्वेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन। नॉर्मली we are familiar with four types of equation. One is linear, one is linear equation, second one is quadratic equation, quadratic equation, third one is cubic equation, and fourth one is biquadratic or quartic equation. Biquadratic or quartic, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ biquadratic. Normally we are familiar with these type of four basic equations: linear, quadratic, cubic, biquadratic. लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं जुहेर? विच इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन? यस जुहेर। सर पता नहीं। अच्छा एहतशाम, लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? अच्छा, उमर को मैंने अनम्यूट किया। उमर, आई हैव अनम्यूटेड यू। आई हैव सेंड अ मैसेज ऑफ अनम्यूट एट योर साइड। टर्न ऑन योर माइक। एम उमर। जी सर। जी बेटा, आप लेक्चर जी सुन रहे हैं?
जी सर। बातें समझ आ रही हैं आपको? जी अच्छा, लीनियर इक्वेशन के मुतालिक आप क्या जानते हैं? सर, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें समथिंग हैविंग कोई लाइन आ जाए। लीनियर इक्वेशन के लिए जब भी ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है? जी और इसके बाद अलावा कोई बात बता सकते हैं लीनियर के हवाले से? सच सर, इक्वेशन, यस यस, वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है वो तो और लाइन की बात स्ट्रेट ही होती है। जाती है। जी अच्छा, सुने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। माइक आपने ऑन ही रखना है, सुने। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, लीनियर। अब इससे ऑर्डर फॉलो करना, क्वाड्रेटिक। Such equation in which highest power of the variable is 2 is called quadratic. Cubic. The equation in which highest power of the variable is 3 is called cubic equation. Biquadratic or quartic. Such equation in which highest power of the variable is 4. You got all these definitions, students? Yes. Okay, Zuhair, can you repeat? जो भी बातें मैंने अभी आपसे शेयर की हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसे रिपीट जी करें। सर बेसिकली आपने लीनियर में ये बताया है कि उसका जब ग्राफ बनता है तो किसी भी साइड से अगर उसका ग्राफ बनेगा तो उसकी लाइन स्ट्रेट ही होगी, कर्व नहीं होगी, राइट? क्वाड्रेटिक में सर उसमें एक लूप बनता है, गेस, हाँ, सेमी सर्कल बनता है, राइट? गुड गुड, कर्व बनता है, वेरी गुड। ये अप साइड होता है जो क्वाड्रेटिक वाला होता है, और जो क्यूबिक होता है वो लोअर साइड से होता है। नहीं नहीं, मतलब क्यूबिक में भी बाउल। कर्व बन जाता है, बाई क्वाड्रेटिक में भी कर्व बन जाता है। यहाँ जी जी डेफिनेशन मैंने अभी कहा 1 2 3 4 के हवाले से, हाईएस्ट पावर मैं कह रहा था, तो ये बातें नहीं रुकी जहन में। कोई भी सर। इक्वेशन जिसमें, ये मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन, देखें, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसमें वेरिएबल क्या है बता सकते हैं आप? एक्स है guess। गुड। इस पे इसकी पावर क्या है इस वक्त? इसमें इसकी पावर 1 है। वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो इसको कहते जी हैं जी लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कहते हैं इसे? लीनियर इक्वेशन। तो आज के बाद याद रखिएगा, ऐसी इक्वेशन जिसपे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 हो, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह क्वाड्रेटिक, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर abc कोफिशिएंट है, वेरिएबल x है। अब x पे पावर बता सकते हैं आप मुझे जुहेर? 2। 1 भी है, मैंने हाईएस्ट तो नहीं पूछा था। x पे पावर 1 भी है, x पे पावर 2 भी है, लेकिन जब मैं कहूंगा हाईएस्ट पावर तो आप कहेंगे 2। तो जब हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 2 होगी तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं आप? क्वाड्रेटिक। क्यूबिक बताएं, क्यूबिक की डेफिनेशन बताएं। जिसमें 3 हो हाईएस्ट पावर। वेरी गुड। बाई क्वाड्रेटिक की बताएं डेफिनेशन। 4 हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर 4 हो, बस मैं ये चाह रहा था, ये भूलना नहीं है आपने। ये मैंने डिस्कशन किए, टाइम स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे, बाद में आप रिवीजन कर सकें क्लास के बाद, क्योंकि भूलेंगे तो अच्छी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट फिर बिल्डअप नहीं होंगे बार बार भूलेंगे तो। आप देखें, in this chapter we will just study quadratic equation in one variable, quadratic equation in one variable। तो ये डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देख लो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये जो आप मुझे कह रहे थे ना, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग, these are the techniques that are used to solve any quadratic equation। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, तो क्या कहेंगे आप? कितने मेथड्स हैं आपके पास? 3 मेथड। तो इससे भी ज्यादा है, एक 4 मेथड तक मैंने देखा है,
लेकिन बुक्स में नॉर्मली हम ये 3 डिस्कस करते हैं। इनके नाम याद रखिएगा, ये सारी बातें मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन मैं रिकॉल करा रहा हूँ, जिसमें आप मिडिल टर्म ब्रेक करते थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, जुहेर मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखवाएंगे आप? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। याद नहीं है आपको? चले मैं किसी और स्टूडेंट से पूछता हूँ। राइट नाउ ये क्लासेस इसीलिए हैं, रिवीजन हो जाए, चीजें आपकी याद हो जाएं। अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, मैं बेसिक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखवाना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। स्टूडेंट रेज योर हैंड if you want to tell me regarding quadratic formula. Yes, Anas has raised his hand first, so I have unmuted him. Yes, Anas. सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस जी। बी X is equal to minus b प्लस माइनस plus minus, very good, अंडर रूट square root बोला करें, square root। स्क्वायर रूट आगे बी स्क्वायर b square माइनस minus 4ac 4ac, very good, अपॉन 4ac upon 2a 2a, very good। तो बेटा तमाम बच्चे याद रख लें, सबने पढ़ा हुआ है, अब बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एबीसी क्या है बेटा? ये एबीसी क्या है बताएं जी। एबीसी जो है ये कोफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्लियर। और एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वी हैव 1.5 मिनट। क्वेश्चन देखते हैं इसका किस तरह से हो रहा है, ताकि आप ये प्रैक्टिस हो जाए आज के हवाले से। Anas, read out this question. Exercise number 3.2 question is solve the following equation by using quadratic formula. आपको ये एक इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसे आपने सॉल्व करना है, लेकिन मेथड आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब आपने इसको कंपेयर किया तो a की प्लेस पे 6 है, ये 6 है ना, a की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह b की प्लेस पे -5 है, b की वैल्यू आ गई -5, c की वैल्यू -4। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया आपने, abc की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपने पुट कर दी है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी।